दोस्तों, आप सबका स्वागत है रिवाइवर ग्रुप की ऑनलाइन ए मीटिंग में, जिसमें हम 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशन की किताब पढ़ते हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं स्टेप 12। तो मैं रीड करता हूं पहले 2 पैराग्राफ बड़े वाले। ओके। स्टेप 12। Having had a spiritual awakening as a result of these steps, we try to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs. The joy of living is the theme of A's 12 step, and action is its key word. Here we turn outward toward our feeling, towards our fellow alcoholics who are still in distress. Here we experience the kind of giving that asks no rewards. Here we begin to practice all 12 steps of the program in our daily lives so that we and those about us may find emotional sobriety. When the 12th step is seen in its full implication, it is really talking about the kind of love that has no price tag on it. Our 12th step also says that as a result of practicing all the steps, we have each found something called a spiritual awakening. To new A's, this often seems like a very dubious and improbable state of affairs. What do you mean when you talk about a spiritual awakening? They ask. Maybe there are as many definitions of spiritual awakening as there are people who have had them. But certainly each genuine one has something in common with all the others. And these things which they have in common are not too hard to understand. When a man or a woman has a spiritual awakening, the most important meaning of it is that he has now become able to do, feel, and believe that which he could not do before on his unaided strength and resources alone. He has been granted a gift which amounts to a new state of consciousness and being. He has been set on a path which tells him he is really going somewhere, that life is a dead end, not something to be endured or mastered. In a very real sense, he has been transformed because he has laid hold of a strength, source of strength, which, in one way or another, he had hitherto denied himself. He finds himself in a possession of a degree of honesty, tolerance, unselfishness, peace of mind, and love of which he had thought himself quite incapable. What he has received is a free gift, and yet usually, at least in some small part, he has made himself ready to receive. थैंक Over to यू you, Lucky ji. थैंक यू चंदू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। Hi, Lucky. ग्रेस ऑफ गॉड, आई एम सोबर टुडे। मैं रिवाइवर ग्रुप का मेंबर हूँ, स्पॉन्सर लिया हुआ है। ए के तत्वों पे आधारित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ और उसकी रजा में कट रही है दोस्तों। एक एक दिन के हिसाब से जैसा दिन आता है वैसे मन की तैयारी बन जाती है। एक्सेप्ट करते करते, कुछ बदलाव करते करते, कुछ समझते हुए और कुछ उस पे छोड़ते हुए जिंदगी की गाड़ी आगे चल रही है। आज हम 12/12 के 12th स्टेप को शुरू करने जा रहे हैं और 12वां कदम अ, इस 12वें कदम में बिल डब्ल्यू ने इसका इंट्रोडक्शन देते हुए, जो भी चंदू ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसमें बिल ने इस 12वें कदम की एक थीम समझाई है हमको। इंट्रोडक्शन के जो 4 पैराग्राफ अभी चंदू ने पढ़े, उसमें जीवन का आनंद, जॉय ऑफ लिविंग, और इस जॉय ऑफ लिविंग में बोलता है एक्शन जो है ना, वो कीवर्ड है। इसमें कृति जो है वो कृति पे बड़ा ही जोर है कि जहां पे हम खुद से बाहर निकलकर
उन उन लोगों की ओर मुड़ते हैं जो अभी भी संघर्ष में हैं। हम दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी प्रशंसा के, अपेक्षा के। एक निस्वार्थ सेवा की नींव ये 12वें कदम से शुरू होती है। इंट्रोडक्शन देते हुए बिल ये कहता है कि स्टेप 12 का अभ्यास जब हम अपनी दैनंदिन रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं तो हम अपने लिए और दूसरों के लिए भावनात्मक संयम पाना शुरू करते हैं। बिल यहीं पे पहली बार इमोशनल सोबरिटी की बात करता है। इस स्टेप की अगर गहराई में जाकर देखेंगे तो पता चलता है कि ये उस प्यार के बारे में है जिसके बदले में कुछ नहीं मांगा जाता। यानी कि निस्वार्थ प्रेम हमने कई बार सुना था। ये उस निस्वार्थ प्रेम को समझाने की बात है कि जैसे किसी प्रेम की कोई कीमत ही नहीं होती। स्टेप 12 की एक आध्यात्मिक शक्ति है, सेवा, प्रेम और बिना किसी अपेक्षा के देना। आगे वो अगले पैरा में बात करता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी आध्यात्मिक जागरूकता की। Our 12th step also says that as a result of practicing all the steps, we have each found something called a spiritual awakening. हम सब ने उस आध्यात्मिक जागृति का एहसास हुआ है, हम जागे हैं। और उससे क्या हुआ है, हमें गहरा परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन को ही हम आध्यात्मिक जागृति का कारण बताते हैं। नए सदस्य को शायद ये बात बहुत अजीब, संदिग्ध और अविश्वसनीय लगती है कि सोचते हैं आखिर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है। हमारे साथ में बहुत सारे नए पुराने सभासद जुड़े हुए हैं और जो नए सभासद जो अभी ये 12 कदमों के रास्ते पे चले नहीं है या आधे रास्ते में हैं या प्रयास कर रहे हैं, उन सबको ये बात ऐसे होगी कि ये बड़ी अजीब, संदिग्ध और अविश्वसनीय लगने जैसी है। बिल सवाल उठाता है कि आखिर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आगे कहता है कि नई सोब्राइटी में यह अनुभव दूर और मुश्किल लग सकता है। आपके मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है क्योंकि इस बदलाव का अर्थ और वास्तविकता को अभी महसूस नहीं कर पाए होते हैं। आगे कहता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का खुलासा करता है कि देयर आर मेनी डेफिनेशंस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज देयर आर पीपल हु हैव हैड देम। जितने हम लोग ए में है ना, उतनी व्याख्याएं इस आध्यात्मिक जागृति की हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। जितने लोग इसे अनुभव करते हैं उतनी ही परिभाषाएं हो सकती है, लेकिन हर सच्ची आध्यात्मिक जागृति में कुछ बातें समान होती हैं, कॉमन होती हैं और उन्हें समझना कठिन नहीं है। जब किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक जागृति होती है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण अर्थ ही होता है कि एक, वो अब ऐसा सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने में सक्षम हो जाता है जो पहले वह कभी अकेले अपनी शक्ति या इच्छा से नहीं कर पाता था। और ये गिफ्ट कहता है, एक नई चेतना, एक नया अस्तित्व, एक नया दृष्टिकोण। अब जब हम उसे महसूस करते हैं तो ये समझ में आता है कि जीवन कोई बंद गली नहीं है यार। मेरा जीवन, ऐसे कई बार हमें महसूस होता है ना कि जीवन का जैसे एक एंड ऑफ द स्ट्रीट आ गया है। जीवन कोई बोझ नहीं सिर्फ ढोना है, बल्कि यह अर्थपूर्ण यात्रा है जहां वो आगे बढ़ रहा है, जहां हम आगे बढ़ रहे हैं। जब ऐसा महसूस होने लगता है ना, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम वास्तव में बदल चुके हैं, क्योंकि हमने एक ऐसी शक्ति को पकड़ लिया है, ऐसी शक्ति जिसे हम पहले स्वीकार करने को या अपनाने को तैयार नहीं थे। इस जागृति के बाद ईमानदारी, सहनशीलता, निस्वार्थता, शांति और प्रेम उत्पन्न होने लग पड़ते हैं। हमने कई बार इन चीजों को
करने की कोशिश की, लेकिन हमने कई बार पीते वक्त मैंने महसूस किया कि ईमानदारी नहीं आती थी, सहनशील में था नहीं, पूरी तरह से स्वार्थी था, अशांत था और आत्म केंद्रित था। अब भी यहाँ पे कहता है कि यह चीजें अब उत्पन्न होने लगती हैं, और सच में ये पहले मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन अब ये अंदर से आने लग पड़ती है। और बिल कहता है ये एक फ्री गिफ्ट है, ये मुफ्त उपहार है, लेकिन फिर भी किसी न किसी स्तर पर अपने आप को ये पाने के लिए हम तैयार कर लेते हैं। हैज क्वेश्चन ज्वाइन चंदू? Not yet, I guess. Okay, okay. So we will do a little bit more elaborate of this introduction. Yeah, अब that would be great. हाँ, अब इस इंट्रोडक्शन में जॉय ऑफ लिविंग से शुरू करते हुए इमोशनल सोबराइटी पे आते हुए और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, आध्यात्मिक जागृति का अर्थ बताते हुए, उसकी संभावनाएं बताते हुए बिल ये 12वें कदम को शुरू कर रहा है। अगर मैं ये तीनों चीजों को अपने अनुभव से जोड़ूं तो आखिरी के दिनों में जिंदगी जीने में कोई आनंद था ही नहीं। मेरी जिंदगी एक यंत्र मानव की तरह चल रही थी, एक रोबोट की तरह चल रही थी, जिसमें सिर्फ मैं वो दिन ढकेल रहा था, वो समय ढकेल रहा था, क्योंकि शुरुआत में शराब ने जो आनंद दिया था अभी वो कहीं खो गया था। अब मैं अपने गम और दुख भुलाने के लिए पी रहा था, लेकिन पीने के बाद में भी वो गम जा नहीं रहे थे, वो दुख जा नहीं रही थी। मेरी असफलताएं, मेरे फेलियर्स, वो अब घूम घूम के मेरी आंखों के सामने आने लग गए थे, और शरीर थक चुका था, मन थक चुका था, दिमाग थक चुका था, और ये थकान एक डिप्रेशन और अकेलेपन की तरफ मुझे ले जा रही थी। मैं घर में तो रह रहा था, लेकिन मैं घर का सदस्य बन के नहीं जी रहा था। मेरे पास समाज था, लेकिन उस समाज में भी अकेला था, पूरी तरह से अकेला और एक निराश जीवन जीने वाला। जीवन क्या होता है ये शायद हम शराबियों को ही सबसे ज्यादा पता है। हमने वो महसूस किया है, वो अकेलापन, वो नैराश्य और वो बंद गली जिंदगी की। जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि हम इतने निराश हो चुके थे कि अब ये महसूस होता था कि ये जिंदगी में तो अभी कुछ नहीं कर पाएंगे हम, और अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो अभी बस मृत्यु का इंतजार है। क्योंकि सालों साल पीते पीते और अपने शराब से मुक्त होने के असफल प्रयत्नों के कारण शराब के बिना जीना संभव है, ये अभी कल्पना में भी नहीं आता था। पहले तो हम बोलते थे कि नहीं, छोड़ दूंगा, नहीं कर लूंगा, लेकिन कुछ सालों के बाद शराब के बिना जीवन अभी कल्पना में भी नहीं आता था, सपनों में भी नहीं आता था। इतनी घोर निराशा छाई हुई थी। और मेरी कहानी तो ऐसी है कि जब मुझे ये मैसेज मिला, और मैसेज मिलने वाला व्यक्ति जब मुझे बोल के गया कि तुमने क्या बनना था और क्या हो गया सोचिए, तो मैंने वो अंधेरा ही दिखाई दिया। जीवन के शुरुआत से लेकर के उस हॉस्पिटल में एडमिट होने तक का जब मैंने अपना पूरा जर्नी देखा, और आखिरी में मुझे यही लगा कि लकी अभी जीवन को खत्म कर देना चाहिए यार। भगवान मेरी मदद करे, अगर भगवान है तो इस जिंदगी का अंत कर दे, मैं ऐसे नहीं जी सकता। देखिए, मेरे मन में तभी ये विचार नहीं आया कि मुझे मुक्ति शराब से दिला दे, क्योंकि मन इतना निराश हो चुका था कि वो कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। और मेरे मन से यही प्रार्थना निकल रही थी कि काश मैं कल सुबह उठूं ही नहीं, मैं और मेरा परिवार छूट जाएंगे इसमें से। तो ऐसे में जिंदगी जीने का आनंद तो दूर की बात है। अगला
अगली बात हो यहाँ पे, मुख्य बात हो रही है यहाँ पे इमोशनल सोब्राइटी की। भावनिक रूप से हम रिकवरी के अंदर भी देखें तो बड़े सेंसिटिव रहे हैं ना, छोटी छोटी बातों को लेकर के ओवर थिंकिंग करना, और उसका पता नहीं अपनी सेल्फ विल से क्या रास्ते निकालना, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं। हमने देखा अपने पहले के कदमों में, तीसरे चौथे पांचवे छठे कदम में, जब सेल्फ विल हमसे अपनी जिंदगी की गुत्थी सुलझाने के आइडियाज देती थी, हमें ये समझ में नहीं आता था कि भाई हमारी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, हमारे पास अनुभव नहीं है इन चीजों के, हमें सीखने पड़ेंगे, हमें प्राप्त करने पड़ेंगे, हमें पाने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी वो तथाकथित आत्मनिर्भरता यही बोलती थी, नहीं लकी कर लेंगे यार। और उसमें वो इतना संवेदनशील होके जीना, जहाँ पे जहाँ पे औरों पे निर्भर करना, परिस्थितियों पे निर्भर करना, और लोगों को दोष देते रहना, ऐसे में रिकवरी में भी जॉय ऑफ लिविंग नहीं था मेरे पास दोस्त। मेरा अनुभव ये बताता है कि रिकवरी का अर्थ मैंने मटेरियल रिकवरी लगा लिया था, और उस मटेरियल रिकवरी को ही प्रमुख केंद्र बिंदु बना लिया था। मैं ये भूल गया था कि मैं इतना असुरक्षित हूं कि कितने भी बड़ा सक्सेस मेरी उस असुरक्षितता को दूर नहीं कर पाएगा। टेम्पररी तौर के ऊपर मैं थोड़ा रिलीफ महसूस कर सकता हूं, लेकिन ये असुरक्षितता फिर से आ जाएगी, और वो इमोशनल रोलर कोस्टर बिल कहता है कई बार में, वो मूड स्विंग्स हमारी रिकवरी में दिखाई देते हैं। और उन मूड स्विंग्स की वजह हमारा इमोशनल सेंसिटिविटी बिल यहाँ पे बात करता है कि उस इमोशनल सोब्राइटी को पाना शुरू कैसे किया जाए। यहाँ पे जवाब देता है, खुद से बाहर निकलकर उन साथियों की ओर मुड़ते हैं जो अभी भी संघर्ष में हैं। हम दूसरों की मदद करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। स्टेप 12 का अभ्यास जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं तो हम अपने लिए और दूसरों के लिए भावनात्मक संयम पाना शुरू कर देते हैं। और फिर इस इंट्रोडक्शन में आध्यात्मिक जागृति की बात करता है। अब यह आध्यात्मिक जागृति, ये बड़ा, मैं समझता हूं कि शुरुआत के दौर में बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि शायद इस आध्यात्मिक जागृति से हमारी अपेक्षा ऐसी है कि जैसे कोई बहुत बड़ा चमत्कार, जैसे कोई बहुत बड़ा साक्षात्कार। अगर ये कल्पना लेके हम इस सेंटेंस को देख रहे हैं तो शायद वो गलत है। क्योंकि मैं अपना अनुभव बताऊं तो जिस दिन मैंने अपनी पहली मीटिंग की, ए की मीटिंग की, उस मीटिंग में किसने क्या कहा मुझे आज भी याद नहीं है। एक लेडी मीटिंग चला रही थी और एक 40-50 लोग सामने बैठे हुए थे, जिसमें मैं भी था। लोग आ रहे थे, बात कर रहे थे, जा रहे थे। इतना पता है अपने आप को अल्कोहलिक कह रहे थे और शराब से दूर अच्छे खासे लोग दिख रहे थे। वो मीटिंग खत्म होने के बाद जब मैं उठा तो मुझे बड़ा हल्का महसूस हुआ। मेरे अंदर से आवाज आई, लकी इधर नहीं तो किधर नहीं है, अभी चीटिंग मत करना। बस ये दो चीजें मुझे उसकी याद है। और जब मैंने अपने ग्रुप में आकर के कुछ दिनों के बाद ये शेयर किया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, तो मुझे मेरे ओल्ड टाइमर ने समझाया, बोला इसी को हम आध्यात्मिक जागृति कहते हैं। ये जो तेरे को महसूस हुआ है, ये जो तू आते रह रहा है, ये जो तेरे को विश्वास बन गया, ये जो तेरे सवाल निकल गए, ये क्या आध्यात्मिक जागृति नहीं है? तो इस मामले में जागरूक हो गया है अभी। और धीरे धीरे जैसे हम ए में आते जाते हैं तो हमारी सबसे पहली जागृति होती है मेरी समस्या का सही स्वरूप।
मुझे मेरी समस्या का सही स्वरूप ही नहीं पता था। मैं तो लोगों की तरफ उंगली उठाता था, और जब लोग खत्म हो जाते थे तो अपने भाग्य की तरफ बोलता था, नहीं यार मेरी किस्मत ही ऐसी है, बस मेरा कुछ ठीक नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं कर सकता। जबकि समस्या का सही स्वरूप तो अल्कोहलिज्म में था, मेरी जिंदगी की अनमैनेजेबिलिटी में था। ये न तो किसी ने बताया और ना ही मुझे समझ में आया। अपने आप को शराबी स्वीकारना ये एक जागृति है, अपनी अस्त व्यवस्था को स्वीकार करना ये एक जागृति है। और इतना ही नहीं, ये अवेकनिंग का सिलसिला पूरे 11 कदम तक चलता रहता है दोस्तों। और कई जागृतियां होती हैं हमको हमारे बारे में। जब हम कहते हैं कि वी केम टू बिलीव अ पावर ग्रेटर देन आवर सेल्फ कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी, जब हम वो बात करते हैं तभी ये जागृति होती है। यार मैं तो पागल ही था। जब सेल्फ विल की बात होती है तो ये समझ में आता है कि मैंने कैसे अपनी इच्छा दूसरों पे लादी और अपनी इच्छा को सर्वोपर रखा। औरों का तो छोड़ो, खुद का भी ध्यान नहीं रखा मैंने। अपनी इच्छा की प्राप्ति करने के लिए खुद का कितना नुकसान करके लिया। सेल्फ विल रन राइट। ये जब भी हम एनालिसिस करके, तो इसके बारे में जागृति होती है अपने अनुभव से। ऐसी जागृतियों का सिलसिला शुरू होता है। इसके लिए बिल यहाँ पे ये कहता है कि जितने व्यक्ति उतने प्रकार की आध्यात्मिक जागृति की व्याख्याएं हो सकती है, लेकिन एक बात समान है, एक बात समान है कि आध्यात्मिक जागृति के बाद हमारे अंदर वो बदलाव आ जाता है उस मामले में जहां जहां पे जागृति हुई है, वहां वहां पे बदलाव आना शुरू हो जाता है, और मैं बदलाव के रास्ते पे शुरू हो जाता हूँ। और जैसे मैं बदलाव के रास्ते पे चलता हूँ, मुझे सवालों के जवाब मिलने लग पड़ते हैं। और जब उन जवाबों को अपनी जिंदगी में मैं उतारने लग पड़ता हूँ, जब मैं लोगों की सुनने लग पड़ता हूँ, उन पे विश्वास करने लग पड़ता हूँ, इन तत्वों पे विश्वास करने लग पड़ता हूँ, तो और जागृति होती है। और ये सारा सिलसिला ये कन्वर्ट होता है जॉय ऑफ लिविंग में, ये कन्वर्ट होता है इमोशनल सोब्राइटी में। और बिल ने ये पहले के वाक्यों में, इस इंट्रोडक्शन में, इस गिफ्ट को विस्तृत रूप से हमें समझाया है। यस चंदू। थैंक यू लकी जी। आई थिंक पूषण हैज जॉइंड, सो वो Yes. थोड़ा वो देंगे क्या इंट्रो? नमस्ते भाइयों, मेरा नाम पूषण है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय भूषण। पूषण। सॉरी, थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो गया। अभी 3 दिन पहले मेरे सासू माँ का डेथ हो गया। शी एक्सपायर्ड। और कंडोलेंस कॉल के लिए कुछ लोग घर पे आए थे, और उस चक्कर में मीटिंग में ज्वाइन करने में थोड़ी सी देरी हो गई। यहाँ पर बिल डब्ल्यू जब भी बात करता है प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज, यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करता है 12वें कदम में, तो किसी को भी ऐसा लगेगा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसका मतलब एक साक्षात्कारी अनुभव, ईश्वर का किसी न किसी प्रकार का, जैसे बिल को हुआ वैसे साक्षात्कार। लेकिन बिल क्विकली यहाँ पर समझाने का कोशिश करता है कि आध्यात्मिक ये जो साक्षात्कार जो है, ये साक्षात्कार का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय दैट। और वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि आप अभी वो सब चीजें कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, जो पहले आप अपने आप से कर नहीं पाते थे।
दोस्तों, मेरी सासू माँ जब भी बीमार थी, एक वायरल इन्फेक्शन से हॉस्पिटलाइज हुई थी। एक 10-12 दिन हॉस्पिटल में होने के बाद में उसको डिस्चार्ज करके घर पे लाया गया। यही दौर पर यही समय पर मेरी कुछ प्रदेश में जाने की टिकटें निकली हुई थी, पैसा भर के हो गया था और ढेर सारा पैसा भर के हुआ था। और एक सामने ऐसा मुद्दा आया, मेरे पत्नी ने बात छेड़ी कि अगर माँ की तबीयत ठीक नहीं होगी तो हम ये छुट्टी का क्या करेंगे। और मेरे मन में पहला इंस्टिंक्टिव ख्याल तो यही आया था कि ढेर सारे पैसे भरे हुए हैं और ये वेस्ट जाएंगे, क्योंकि इतना लास्ट मिनट कैंसिलेशन करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने ये बोला नहीं, मैंने वो टाइम पे इतना ही बोला कि जिस दिन वो परिस्थिति आएगी उस दिन देखेंगे, आज तो वो ठीक है। और गॉड्स ग्रेस ऐसी रही कि वो हॉस्पिटल से वापस आ गई, 2 दिन पहले आ गई और ठीक ठाक थी और हम लोग छुट्टी के लिए चले गए। लगभग 11 दिन की छुट्टी करके वापस आने के बाद 12वें दिन पे जब हम लोग उसको मिलने चले गए तो उसकी अवस्था ठीक थी, लेकिन उसने मुझे बिठाया उसको अपने बाजू में और मेरे कंधे पे उसने सर रखा और उसने मुझे बोला कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं। और मुझे अंदर से एक आवाज आ रही थी कि शायद इसका अंतिम समय करीब आया है। ढेर सारी टेस्ट करने के बाद में समझ में आया कि उसकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, और लेकिन इतनी भी गंभीर नहीं थी कि इमीडिएटली अगले दिन ही उसका देहांत हो जाए। लेकिन मुझे उस दिन रात को मैंने अपनी पत्नी को बिठाया और मैंने उसको बोला कि देख, उसकी उम्र और उसकी शारीरिक स्थिति देखते हुए मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उसको ज्यादा लंबा सफर नहीं करना पड़े। वो एक सात्विक आत्मा रह चुकी है और अगर वो उसको जल्दी मुक्तता मिल जाए तो यही उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जो बीमारी उसको लगी हुई थी उसका आगे का जो प्रोग्रेशन है, मैं वो चैट जीपीटी पे पढ़ रहा था और वो सिचुएशन दिख रही थी कि ये आगे जाके डिपेंडेंट और एकदम मतलब बेसहारा जैसी ऐसी अवस्था में उसकी होने वाली है। और सुबह उसी रात को ये सब मेरी बात हुई। उस दिन उसके एक्चुअली सब रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आए थे और मेरी पत्नी थोड़ी सी खुश थी कि चलो कुछ नहीं, इमीडिएट जो संकट लग रहा था वो टल गया। लेकिन दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे उसका देहांत हो गया और वो भी एकदम नींद में ही आराम से शांति के साथ में, चेहरे पे उसके शांत भाव रखते हुए। और मैं सोचने लगा कि कल रात को मुझे ये जो प्रीमोनिशन कहते हैं, एक इंग्लिश में शब्द है, कि मुझे एक अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि इसका समय आ चुका है। और लगभग मैं आधा पौना घंटा मेरे बीवी के साथ में उसके बारे में बात कर रहा था और उसके वजह से जब ये एक्चुअली एक्ट हुआ तो मुझे भी सरप्राइज नहीं लगा और मेरे बीवी को ऑफ कोर्स बुरा तो लगा, लेकिन शॉक नहीं लगा। और हम सब लोग बड़े प्रेम के साथ में उसको विदा कर सके।
अब मैं एक शराबी, कंप्लीटली सेल्फिश आयुष्य जीवन जिया हुआ, कभी दूसरे के बारे में सोचने के लिए मेरे पास फुर्सत ही नहीं थी पीने के दौरान। लेकिन आज सोबराइटी में जब भी अलग अलग ये स्टेप्स का पालन करते हुए एक इंस्टिंक्टिव ज्ञान होने लगता है। आप सेंस करने लगते हो, कुछ अपने अंदर एक कुछ स्पेशल गिफ्ट्स निर्माण हो जाती है, जिसकी वजह से आदमियों के अंदर की अच्छाई देखने की क्षमता आप में आ जाती है। जहां फ्रिक्शन होने वाली है, वो फ्रिक्शन अवॉइड करने की आपको कला प्राप्त हो जाती है। बहुत, मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल झगड़े नहीं होते, लेकिन वो झगड़े को हाथ से बाहर बहकने न देना, ये टेक्निक, ये आर्ट जो है, ये आपको प्राप्त हो जाती है। जरा मन का संतुलन ढल जाए, भले बुरा लगे, गुस्सा आ जाए, डर लगे या कुछ भी, तो बहुत जल्दी से हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं और अपने आप की भावनाओं के ऊपर काबू पा सकते हैं। ये मैंने देखा। और किसी भी स्थिति में अपनी तटस्थता, जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, साक्षी भाव में रहकर हम वो परिस्थिति को, वो लोगों को, वो स्थिति को तटस्थता के साथ, किसी भी प्रकार की भावनिक उथल पुथल न होते हुए, हम लोग उसको समझने की, संभलने की, और जहां तक हमारे से हो सके उसको ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। लोगों को इन चीजों का बड़ा आश्चर्य लगता है। लोगों को ऐसे लगता है कि कितनी मैच्योरिटी आप में है, लोगों को ऐसे लगता है कि कितनी गंभीरता आप में है, या कितना विषय के प्रति आप फिलोसॉफिकली विचार कर सकते हो। लेकिन ये मैं नहीं था दोस्तों। ये सभी जो मैं समझता हूं ये प्राप्त होता है आपको, ये गिफ्ट्स आपको 11 ये पायरी का पालन करते हुए ये आपको गिफ्ट्स मिलने लगती है। सो ये जब भी गिफ्ट्स आती है, तो उसके साथ में जैसे बिल डब्ल्यू यहाँ पर कहता है कि आपको एक सर्टेन डिग्री ऑफ ऑनेस्टी, सर्टेन डिग्री ऑफ टॉलरेंस, सर्टेन डिग्री ऑफ अनसेल्फिशनेस, ए डिग्री ऑफ पीस ऑफ माइंड, एंड एक लव, एक प्रेम, एक प्यार भरा हृदय आपको प्राप्त हो जाता है, जो मेरे लिए बिल्कुल असंभव था। इनमें से कोई भी भाव मैं अपने आप को व्यतीत करने के लिए नहीं यूज कर सकता था, लेकिन अभी मैं महसूस करता हूं। मेरा महसूस करना तो शायद एक इल्यूजन हो सकता है, लेकिन मेरे अगल बगल में मेरे चाहने वाले या मेरे संपर्क में आने वाले लोगों को भी ये बदलाव दिखने लगता है। अभी आज की ही बात है, या रादर कल की बात है, हम लोगों ने, ये तो देहांत तो हो गया 2 दिन पहले, लेकिन आज हमने नासिक में मेरा कामकाज है थोड़ा बहुत, और उन सब का एक गेट टुगेदर ये कल रात के लिए हम लोगों ने प्लान किया था। अब ये तो तीसरा ही दिन था, और सूतक जो कहते हैं कि मतलब मेरी पत्नी को लगता है, और उसने बाहर निकलने का या नहीं निकलने का, तो नॉर्मली 13 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन मैंने उसको कल सुबह इंस्टिंक्टिवली मैंने उसको बोला कि देख, तू यहां रहेगी तो इन्हीं विचारों में रहेगी। अगर तू साथ में आएगी तो 4 लोगों से मुलाकातें होगी, बातें होगी, तुझे भी हल्का लगेगा, और तू आई इतना सारा दुख का सिचुएशन होते हुए, ये देखकर उनको भी बड़ा हौसला अफजाई होगी, उनको भी अच्छा लगेगा। और तेरी माँ क्या चाहेगी कि तू उसके दुख में यहाँ बैठे बैठे रोते रहे, आंसू ढालते रहे,
और लोगों का आके सांत्वना करने का इंतजार करते रहे, या उसकी मेमोरी को सही रिस्पेक्ट देते हुए तूने जो करना है, तूने जो हाथ में लिया हुआ है वो करे। तो वो आई मेरे साथ में, मैं नहीं सोच रहा था कि वो आएगी, वो आई। और हम लोगों का एक बहुत अच्छा दिन गया। कल का दिन मैं स्पेशल कर सका। मैं वहां पर एक एकदम स्पेशल होटल में एक रिजर्वेशन किया, जहां पर उसको अच्छा लगे, उसको रिलीफ लगे। और एक कपल हम लोग के साथ में लेके गए, उनके साथ में बातें की। और आज दोपहर को जब ये आए तो वो काफी रिलीफ उसको महसूस कर रहा था, और उसने जस्ट एक कैजुअली मुझे थैंक्स करके बोला। और मुझे जो पावती मिली, मुझे मालूम था कि मैं दूसरे की भावनाओं के प्रति बिल्कुल संवेदनशीलता मेरे में नहीं थी। और अगर आज मैं ये सेंस कर सकता हूं और उसके लिए कुछ सॉफ्ट इमोशंस एक्सप्रेस कर सकता हूं, और दूसरे का दर्द हल्का करने में कुछ थोड़ा बहुत अगर मदद कर सकता हूं, तो ये पूरी जो देन है, ये जो साक्षी भाव प्राप्त हुआ है, जो एक कर्ता भाव से हम साक्षी भाव में जाते हैं 11 कदमों का पालन करते हुए, उसके वजह से हुआ है। और जो कहते हैं ना कि 12वां कदम 12वां क्यों रखा हुआ है, क्योंकि कैरिंग द मैसेज, लोगों को अगर आपने जाके संदेशा देने का है, तो अगर आपकी पर्सनैलिटी ही ठीक नहीं है, अगर आपका पर्सनैलिटी ही अट्रैक्टिव नहीं बना है, तो आप लोगों को क्या आकर्षित कर पाओगे। तो ये अनुभूति आपको मिलती है कि जब भी आपकी पर्सनैलिटी आकर्षक हो जाती है, तो जब भी आप संदेश वहन भी करते हो, आप जब दूसरे पीड़ित शराबी के साथ में बात करने जाते हो, वो पूरे प्यार के साथ में, पूरी ह्यूमिलिटी के साथ में, तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है और सामने वाले को कंफर्ट भी बहुत मिलता है। सो बिल डब्ल्यू जब ये 12वें कदम के बारे में हमारे साथ में बात कर रहा है, ये हर एक पैराग्राफ में, हर एक पैसेज में आपको फीलिंग महसूस होगा। यहां पर जो है ये इंटेलेक्चुअली अपील नहीं, ये इमोशनली अपीलिंग चीजें आपको नजर आएगी, दिखाई देगी आपको। ये जो 12वें कदम का जो रस है, वो एंजॉय करने में बड़ा मजा आएगा। ओवर टू यू चंदू। Thank you, Bhushan. AA's manner of making ready to receive this gift lies in the practice of 12 steps in our program. So let's consider briefly what we have been trying to do up to this point. Step 1 showed us an amazing paradox. We found that we were totally unable to be rid of the alcohol obsession until we first admitted that we were powerless over it. In step 2, we saw that since we could not restore ourselves to sanity, some higher power must necessarily do so if we were to survive. Consequently, in step 3, we turned our will and our lives over to the care of God as we understood Him. For the first time, for the first being, we, we who were atheist or agnostic discovered that our own group or A as a whole would suffice as a higher power. Beginning with step 4, we commenced to search out the things in ourselves which had brought us to physical, moral, and spiritual bankruptcy. We made a searching and fearless moral inventory. Looking at step 5, we decided that an inventory taken alone wouldn't be enough. We knew we would have to quit the deadly business of living alone with our conflicts and in honesty confide these to God and to another human being. At step 6, many of us balked for the practical reason that we did not wish to have all our defects of character removed because we still loved them, we still loved some of them too much. Yet we knew we had to make a settlement with the fundamental principles of step 6.
So we decided that while we still had some flaws of character that we could not yet relinquish, we ought nevertheless to quit rebellious hanging on to them. We said to ourselves, "This I cannot do today, perhaps, but I can stop crying out." No, never. Then, in step 7, we humbly asked God to remove our shortcomings, such as He could or would under the conditions of the day we asked. In step 8, we continued our house cleaning, for we saw that we were not only in conflict with ourselves, but also with people and situations in the world in which we lived. We had to begin to make our peace, and so we listed the people we had harmed and became willing to set things right. We followed this up in step 9 by making direct amends to those concerned, except when it would injure them or other people. By this time, at step 10, we had begun to get a basis of daily living, and we keenly realized that we would need to continue taking personal inventory, and that when we were in the wrong, we ought to admit it promptly. In step 11, we saw that if a higher power had restored us to sanity and had enabled us to live with some peace of mind in a sorely troubled world, then such a higher power was worth knowing better by as direct contact as possible. The persistent use of meditation and prayer we found did open the channel so that where there had been a trickle, there now was a river which led to sure power and safe guidance from God as we were increasingly better able to understand Him. Thank you. आई थिंक चंदू आगे का पैराग्राफ लेना चाहिए. Okay. So, practicing these steps, we had a spiritual awakening about which finally there was no question. Looking at those who were only beginning and still doubted themselves, the rest of us were able to see the change setting in. From great numbers of such experiences, we could predict that the doubter who still claimed that he hadn't got the spiritual angle and who still considered his well-loved A group with a higher power would presently love God and call him by name. Now, what about the rest of the 12 steps? The wonderful energy it releases and the eager action by which it carries our message to the next suffering alcoholic and which finally translates the 12 steps into action upon all our affairs is the payoff, the magnificent reality of Alcoholics Anonymous. Okay? हाँ, ओके. तो इसका मोटा मोटा हिंदी में अनुवाद और सार ऐसा है. बिल यहाँ पे बताता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, आध्यात्मिक जागरूक के लिए एक ही तैयारी कहाँ से शुरू होती है, और वो हमें पूरे 12 कदमों के पास से एक नजर डालने को बताए कि स्टेप 1 में हमने एक बड़ा विरोधाभास देखा, और जहां हम ऑब्सेशन से निकल नहीं पाए थे, यानी कि हार मानना ही पहली जीत थी. स्टेप 2 में हमने देखा कि हम खुद अपनी सैनिटी वापस नहीं ला सकते थे, इसलिए एक हायर पावर की आवश्यकता है, और ये शक्ति हमारे जीवित रहने के लिए एक जरिया बन गई. स्टेप 3 में हमने अपनी इच्छा और जीवन उस हायर पावर को सुपुर्द कर दिया. जो लोग नास्तिक या आज्ञेयवादी थे, उन्होंने पाया कि शुरुआत में उनका ए समूह ही उनका हायर पावर बन सकता है. स्टेप 4 में हमने अपने अंदर झांकना शुरू किया और उन सभी बातों को तलाशना जिन्होंने हमें शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से तोड़ा था. हमने एक खोजपूर्ण और निडर नैतिक जांच बनाई. स्टेप 5 में हमने महसूस किया कि इन्वेंट्री लेना ही काफी नहीं है, उसके साथ अपनी सच्चाइयों को ईमानदारी से भगवान और एक इंसान के सामने स्वीकार करना जरूरी है, ताकि हम अपने अंदर के संघर्ष में अकेले न मरते रहें. स्टेप 6, यहाँ हम में से कई लोग रुक गए.
क्योंकि सच ये है कि हमें अपने कई स्वभाव दोषों से अभी भी प्यार था, लेकिन हमने सिद्धांत स्वीकार किया कि हमें अपने दोषों को छोड़ने की दिशा में कदम उठाना ही होगा। हमने यह सोचा, आज नहीं कर पाया, पर इतना तो कर सकता हूं कि कभी नहीं कहना बंद कर दूं। स्टेप 7 में हमने विनम्रता से भगवान से कहा कि हमारे दोषों को जितना संभव हो हटाएं। स्टेप 8 में हमने देखा कि हम सिर्फ अपने अंदर ही नहीं, दूसरों के साथ भी संघर्ष में थे। हमने उन लोगों की सूची बनाई जिन्हें हमने नुकसान पहुंचाया था और सुधार करने की इच्छा को विकसित किया। स्टेप 9 में हमने उन लोगों से सीधे जाकर अमेंड्स किए जहां वह सुरक्षित था और किसी को नुकसान नहीं होता था। स्टेप 10 में जब अपने दैनिक जीवन का आधार पाया, निरंतर आत्म परीक्षण से गलती होने पर तुरंत स्वीकार किया, यही जीना सीखने की शुरुआत थी। स्टेप 11 हमने देखा कि यदि हायर पावर ने हमें मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक शांति दी है, तो हम उसे बेहतर जानने के लिए ध्यान और प्रार्थना जारी रखते हैं। धीरे धीरे जहां पहले सिर्फ एक बूंद जैसा संपर्क था, अब वहां एक नदी बह रही थी। हमने अपनी शक्ति, मार्गदर्शन और समझ गहरी कर दी। इस पूरे विवरण में एक ही आध्यात्मिकता 11 कदम मिलाकर व्यक्ति को एक नई चेतना, एक नई जिंदगी और एक नई ईश्वर से संपर्क की ओर ले जाती है। हमें वास्तव में स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अनुभव हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं बचा था। वे लोग जो ए में नए हैं और खुद पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में बाकी अनुभवी सदस्य उस बदलाव को साफ साफ देख सकते हैं जो उनके भीतर धीरे धीरे शुरू हो रहा है। ए में बड़ी संख्या में अनुभवों ने यह दिखाया है कि जो नया सदस्य शुरुआत में कहता है, मुझे अभी तक कोई स्पिरिचुअल चीज महसूस नहीं हुई है, और जो अपने समूह को ही अपना हायर पावर मानता है, वो समय के साथ सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ ईश्वर से जुड़ने लगता है और एक दिन उसे नाम लेकर पुकारने लगता है। यानी कि धीरे धीरे आध्यात्मिक अनुभव सबके भीतर विकसित होता है, चाहे शुरुआत में व्यक्ति खुद उस पर संदेह क्यों ना कर रहा हो। थैंक यू। तो बिल डब्ल्यू का एक बहुत खूबसूरत सेंटेंस यहाँ पर है कि he talks about, now let us talk about the rest of the 12 step। जो बची हुई जो बाकी जो 12वां जो कदम है, उसके उसने 2 भाग पकड़े हुए। पहला भाग उसने पकड़ा है, having had a spiritual awakening as a result of these steps, we so पहला भाग में वो बात करता है जो हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ, जो साक्षात्कार, आध्यात्मिक साक्षात्कार जो हुआ, उसके बारे में बात करता है। और यहाँ दूसरे पैराग्राफ में वो शुरुआत करता है, बात करना शुरू करता है, वी ट्राइड टू कैरी द मैसेज टू अल्कोहलिक्स एंड टू प्रैक्टिस दीज प्रिंसिपल्स इन ऑल अवर अफेयर्स। सो दूसरा और तीसरा भाग, दूसरा है ट्राइड टू कैरी दिस मैसेज टू अल्कोहलिक्स, और तीसरा प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर अफेयर्स। तो अगर हम लोग 12वां कदम का सिंपल ब्रेक करें तो उसमें 3 कॉन्सेप्ट, 3 अलग अलग भाग बिल अपने सामने प्रेजेंट कर रहा है। अब ये पैराग्राफ में क्या बात कर रहा है वो, ही टॉक्स अबाउट द मैग्निफिसेंट रियलिटी। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सबसे मैग्निफिसेंट यानी ग्रैंड रियलिटी के बारे में वो बात करता है। वो कहता है कि 11 पायरी का आचरण करने के बाद में जब 12वें पायरी में यानी संदेश वहन करने के लिए आप तैयार होते हो, तो द वंडरफुल एनर्जी इट रिलीजेस एंड द ईगर एक्शन बाय विच इट कैरीज आवर मैसेज टू द नेक्स्ट सफरिंग अल्कोहलिक and which finally translates the 12 steps into action upon all our affairs is the payoff, the magnificent reality of Alcoholics Anonymous. तो
मेरे अंदर 11 पायरियों का आचरण करते हुए जो बदल आया हुआ है, वो एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ताकत मेरे अंदर निर्माण करता है कि जब भी एक आधा सफरिंग अल्कोहलिक मेरे सामने आता है, तो पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ में मेरे थकान दूर हो जाती है। मैं पैसे का विचार नहीं करता हूँ, मैं इनकन्वीनियंस का विचार नहीं करता हूँ, मैं समय का विचार नहीं करता हूँ, मैं वो कौन से धर्म का है, गरीब है या अमीर है, ये सब चीजों का विचार नहीं करता हूँ। सिर्फ एक शराबी ने दूसरे शराबी की जान बचानी है, जो मुझे ये 11 पायरियों का पालन करते हुए जो प्राप्त हुआ है, वो दूसरे पीढ़ी तक मुझे पहुंचाना है। इस भाव में एक लेटेंट एनर्जी, एक दबी हुई एक ताकत मेरे में से बाहर निकलने के लिए तैयार होती है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब मेरे में जो ये बदलाव हुआ है, मेरी जो ये प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज हुई है, मेरा जो व्यक्तिमत्व में बदलाव हुआ है, ये बदलाव अभी जिंदगी के हर एक मामले में मुझे बदलाव लाके देता है। सो दिस, ही सेज, इज द मैग्निफिसेंट रियलिटी ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। यानी अगर कोई पूछा कि भाई किसी ने शराब बंद की, शपथ खा ली, मंदिर में गया, मंदिर पे शपथ खा ली और उसकी शराब बंद हो गई। किसी ने डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले ली, उसको लीवर का प्रॉब्लम है, इसके लिए विल पावर के ऊपर बंद कर दी, और किसी ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके बंद कर दी, तो इन तीनों में अंतर क्या है? तो बाकी लोगों की सिर्फ शराब रुक गई, लेकिन मेरी पूरी पर्सनैलिटी का इलाज हो गया। बाकी लोगों ने खुशी से हो या परेशानी से हो या डर से हो, शराब से दूरी रख ली, लेकिन उनका व्यक्तिमत्व वैसे का वैसा ही रहा और उनके जिंदगी को कोई मकसद नया प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मेरा ऑटोमेटिकली मेरे सभी डिफेक्ट्स थे, उसके ऊपर भी काम हो गया। मैं अपने बारे में बहुत कुछ जान गया, और इतना ही नहीं, बल्कि अभी मेरे अंदर भगवान ने एक ऐसी ताकत, एक ऐसी एनर्जी प्लांट की है कि अभी सिर्फ मैं रुककर खुश नहीं हूं, बल्कि जिसको किसको भी तकलीफ है, उस हर व्यक्ति तक पहुंचने की ताकत एक मुझे गिफ्ट में मिली हुई है। और इतना ही नहीं, बल्कि मेरी पर्सनैलिटी पहले अगर इंट्रोवर्ट थी, तो अभी मेरी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट हो सकती है। पहले अगर मुझे बोलने की हिम्मत नहीं थी, तो अभी मुझे पब्लिक स्पीकिंग भी आसानी से आने लगती है। पहले अगर मेरे और मेरी बीवी के संबंध एकदम बिगड़े हुए थे, तो आज उसी बीवी को मैं दोबारा प्यार करने को सीख गया हूँ। पहले अगर मेरे भाई बहन, बाप, इनके साथ में रिश्ता बिगड़ा हुआ था, तो आज इन्हीं के साथ में सुख समाधान के साथ में, मैं इज्जत के साथ में उनके साथ में रह सकता हूँ। पहले अगर मैं बैंकरप्ट हो गया था, कर्जाऊ हो गया था, अब मैं पूरी तरह से आत्मनिर्भर फाइनेंशियली हो गया हूँ। इतना भी नहीं, तो जो पीड़ित थे उनको और भी मदद करने की मेरे में क्षमता प्राप्त हुई। ये सब जो बदलाव मेरे अंदर हुए हैं, ये बदलाव, ये सब पायरियों का पालन करने की वजह से हुए। तो बाकी लोगों की जो शराब बंद हुई है, वो सिर्फ शराब बंद हो गई, लेकिन उनकी जिंदगी मिजरेबल की मिजरेबल ही रही। लेकिन मेरे में एक प्रोफाउंड एक्सपीरियंशियल चेंज आ गया, पर्सनैलिटी चेंज आ गया, एक मेरे में नई ऊर्जा प्राप्त हो गई। मैंने कई बार देखा है दोस्तों, अगर मेरे को कहीं बिजनेस मीटिंग में बात करना हो या स्टाफ मीटिंग में बात करना होगा, तो 15-20 मिनट बात करता हूं तो मैं थक जाता हूं। लेकिन कभी एए के मीटिंग में बुलाया किसी ने और एक आधा टॉपिक दिया, तो घंटों बात करके भी मैं थकता नहीं हूँ। ये कौन सी एनर्जी है, कहाँ से आती है? जब भी हम लोग ट्रेडिशन वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं, 2-2 दिन 8-8 घंटे बात करता हूँ। कहाँ से आती है ये ताकत? ये ताकत ये मेरी नहीं है, ये कोई विल पावर की ताकत नहीं है, या मुझे मार मचड़ के कोई टॉनिक भी नहीं खा के वहां पर खड़ा नहीं होना पड़ता है। दैट पावर इज गिफ्टेड टू यू। एक नई स्पिरिचुअल एनर्जी आपके अंदर दी जाती है। दिस इज द मैग्निफिसेंट रियलिटी ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। ओवर टू यू, चंद्रू। Thank you. Even the newest
of newcomers find undreamed rewards as he tries to help his brother alcoholic, the one who is even blinder than he. This is indeed the king. Sorry. This is indeed the kind of giving that actually demands nothing. He does not expect his to pay him or even to love him. And then he discovers that by the divine paradox of this kind of giving, he has found his own reward, whether his brother has yet received anything or not. His own character may still be gravely defective, but he somehow knows that God has enabled him to make a mighty beginning, and he senses that he stands at the edge of new mysteries, joys, and experiences of which he had ever never even dreamed. Practically every AA member declares that no satisfaction has been deeper and no joy greater than in a 12-step job well done. To watch the eyes of men and women open with wonder as they move from darkness into light, to see their lives quickly fill with new purpose and meaning, to see whole families reassembled, to see the alcoholic outcast received back into his community in a full citizenship, and above all, to watch these people awaken to the presence of a loving God in their lives. These things are the substance of what we receive as we carry A's message to the next alcoholic. Nor is this the only kind of 12 step work. We sit in AA meetings and listen, not only to receive something ourselves, but to give the reassurance and support which our presence can bring. If our turn comes to speak at a meeting, we again try to carry A's message. Whether our audience is one or many, it is still 12-step work. There are many opportunities even for those of us who feel unable to speak at meetings or who are so situated that we cannot do much face to face 12-step work. We can be the ones who take on the unspectacular but important tasks that make good 12-step work possible. Perhaps arranging for the coffee and cake after the meetings, where so many skeptical, suspicious newcomers have found confidence and comfort in the laughter and talk. This is 12-step work in the very best sense of the word. Freely ye have received, freely give is the core of this part of 12 step. We may often pass through 12-step experiences where we will seem to be temporarily off the beam. This, these will appear as big setbacks at the time, but will be seen later as stepping stones to better things. For example, we may set our hearts on getting a particular person sobered up, and after doing all we can for months, we see him relapse. Perhaps this will happen in a succession of succession of cases, and we may be deeply discouraged as to our ability to carry A's message. Or we may encounter the reverse situation in which we are highly elated because we seem to have been successful. Here, the temptation is to become rather possessive of these newcomers. Perhaps we try to give them advice about their affairs which we weren't which aren't really competent to give or ought not give at all. Then we are hurt and confused when the advice is rejected or when it is accepted and brings still greater confusion. By a great deal of ardent 12-step work, we sometimes carry the message to so many alcoholics that they place us in a position of trust. They make us, let us say, the group's chairman. Here again, we are presented with the temptation to overmanage things, and sometimes this results in rebuffs and other consequences which are hard to take. But in the longer run, we clearly realize that these are only the pains of growing up, and nothing but good can come from them if we turn more and more to the entire 12 steps for the answers.
Okay. Yep. तो अभी चंदू ने जो पढ़ा उसका अनुवाद ऐसा है कि कार बिल कहता है कि यहाँ स्टेप 12 के सबसे सुंदर परिणाम का वर्णन करता है कि दूसरों की रिकवरी देखते हुए जो आनंद मिलता है वो अनोखा है। नो सेटिस्फेक्शन हैज बीन डीपर, नो जॉय ग्रेटर देन इट 12 स्टेप जॉब वेल डन कहता है। लगभग हर एक सदस्य का ये कहना है कि बहुत गहरी संतुष्टि मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है उसे 12वें कदम के काम में जब वो किसी अल्कोहलिक की मदद करने में सफल होता है। वो खुशी इतनी बड़ी क्यों होती है? बिल बताता है, हमने पुरुषों और महिलाओं की आंखों में जब वे अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं तो उनकी आंखों में जो आश्चर्य दिखता है वो हम देखते हैं। उनके जीवन में नया उद्देश्य और नई अर्थपूर्णता बड़ी तेजी से लौट आती है। टूट चुके पूरे परिवार वापस एकजुट हो जाते हैं। समाज से कट चुका अल्कोहलिक फिर से सम्मान और अधिकार के साथ अपने समुदाय में स्वीकार किया जाता है। इन सब लोगों की जिंदगी में प्यार करने वाले ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव जागने लगता है। ये सब अनुभव बिल कहता है कि इनाम है जो हमें स्टेप 12 का संदेश अगले अल्कोहलिक तक पहुंचाने को समय में मिलते हैं। क्या 12वां कदम सिर्फ मैसेज कैरी करना ही है? बिल इसको और इलाबोरेट करता है कि ए में बैठकर मीटिंग सुनना भी 12वें कदम का ही कार्य है, क्योंकि हम सिर्फ लेने के लिए नहीं आते बल्कि अपनी उपस्थिति से नए लोगों को सुरक्षा, भरोसा और समर्थन भी देते हैं। जब हमारी बारी आती है बोलने की तो हम फिर से एक का संदेश ही देते हैं, चाहे सामने एक व्यक्ति हो या पूरी सभा। यह अवसर 12 स्टेप का ही हिस्सा है। यहाँ तक वे सदस्य जो मीटिंग में बोलने से घबराते हैं या जो परिस्थितियों के कारण सामने जाकर 12 स्टेप का काम नहीं कर पाते, उनके लिए भी अनेक सेवाएं उपलब्ध है। जो मीटिंग के समय कॉफी की व्यवस्था करते हैं, स्वागत करते हैं, बैठने की व्यवस्था देखते हैं, लिटरेचर को संभालते हैं। ये काम उनके लिए अ, ऐसा कोई अति महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही माहौल और यही सरल सेवा बहुत से संदेहपूर्ण डरे हुए न्यूकमर्स को पहली बार से अपनापन और भरोसा देती है। और ये भी एक 12 स्टेप का काम है, दिल से किया गया निस्वार्थ सेवा का काम है। क्योंकि 12 स्टेप का केंद्र यही है कि जितना हमने मुफ्त में पाया है उतना ही मुफ्त में बांटना है। इसके आगे लिखता है कि 12वें कदम का काम करते समय आने वाली भावनात्मक उतार चढ़ाव और खतरों के बारे में बिल आगे लिखता है अगले पैराग्राफ में। कभी कभी स्टेप 12 करते हुए हम खुद को अस्थायी रूप से ऑफ बीम पाते हैं, महसूस करते हैं, यानी कि संतुलन से हटे हुए, परेशान या हताश। शुरू में तो ये बहुत बड़ा सेटबैक लगता है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि ये अनुभव एक्चुअली सीढ़ियां हैं जो हमें आगे ले जाती हैं। पहला खतरा, हम पूरी कोशिश करें और सामने वाला फिर भी रिलैप्स कर जाए। हम कभी किसी खास व्यक्ति को सोबर करवाने में अपनी दिल लगा देते हैं, जान लगा देते हैं, महीनों मेहनत करते हैं और वह फिर से पी लेता है। यदि ये कई बार हो तो हम गहराई से हताश हो जाते हैं और अपनी 12 स्टेप की क्षमता पर शक करने लगते हैं। बिल दूसरे खतरे की तरफ हमारा ध्यान ले जाता है। सफलता हमें हाई बना देती है, वो हमें कभी कभी इसके इलोट भी हो जाता है कि हम सफल होते दिखते हैं और हमारे अंदर अहंकार और पॉजिटिवनेस पैदा हो जाता है। हम नए सदस्यों को उनकी जिंदगी में अनावश्यक सलाह देने लगते हैं, ऐसी सलाह जिसमें हम निपुण भी नहीं होते या देना भी नहीं चाहिए। जब यह सलाह रिजेक्ट कर दी जाती है या मानकर अधिक कंफ्यूजन पैदा करती है तो हम दुखी और उलझन में पड़ जाते हैं। तीसरे खतरे की बात करता है बिल यहाँ, पद और जिम्मेदारी से अहंकार का बढ़ना। बहुत स्टेप 12 काम के बाद कभी हम इतने लोगों तक संदेश पहुंचाते तो हमें किसी समिति या समूह का चेयरमैन बना देते हैं। वहां फिर एक नया प्रलोभन आ जाता है, नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का। उसका नतीजा उन लोगों को से प्रतिरोध और दुखी प्रतिक्रियाएं होती हैं जो हमें बहुत चोट पहुंचा सकती है। मैं कंट्रोल करना चालू कर देता हूँ,
ओवर मैनेज करना चालू करता हूँ, और उसका नतीजा ये होता है कि लोग दुखी होने लग पड़ते हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं आने लग पड़ती हैं, जिससे हमें तकलीफ होती है। सेवा करते हुए भी हम इंसान हैं, और इंसान अहंकार, निराशा और उलझन में पड़ सकते हैं, लेकिन ये सब रिकवरी के हिस्से हैं। बिल अंत में कहता है, ये 12वें कदम को, 12 स्टेप वर्क को समझाते हुए हमें हमें अलग अलग खतरों से आगाह करते हुए भी ये कहता है कि इसमें आने वाले जो भी अनुभव हैं, भले निराशा है, भले उलझन है, ये सब रिकवरी के प्राकृतिक हिस्से हैं, नेचुरल हिस्से हैं। ओवर टू यू पुष्प। थैंक्स लकी। मुझे मेरा वो इनिशियल स्ट्रगल याद आता है। 1992 के मई महीने में मैं ठाणे में रहने को आया। उसके पहले मैं अंधेरी रहता था, और 23 मार्च को मेरे बेटे का बर्थडे रहता है। 22 मार्च को मेरा डिस्चार्ज हुआ था। और लगभग मई 5 तारीख को मैं ठाणा में रहने को आ गया। इसका मतलब हार्डली 1 महीने की बाहर रिहैब से डिस्चार्ज होकर 1 महीना, सवा महीना हुआ था, जबकि मुझे ठाणे में रहने को आना पड़ा। या मैंने और मेरे बीवी ने आना चाहा भी, वैसी अपॉर्चुनिटी भी आई, और नया संसार शुरू हो गया। अब मेरी बिल्डिंग में, मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, उसके बगल में ही दूसरी एक बिल्डिंग थी, और वहां पे ग्राउंड फ्लोर पे लगभग हमारी उम्र का एक कपल था। और कई बार रात को वो घर से झगड़े की, चिल्लम चिल्ली की, बर्तनों की आवाज आते थे, और मैं नया नया सोबर, 3-4 महीने, मैं अपनी बीवी को बोलता था कि शायद ये घर में भी कोई बेवड़ा है, इसको मैसेज देने की जरूरत है। तो उसने बोला, जा तेरे ग्रुप में बोल सीनियर मेंबर्स को, कोई ना कोई तो भी मैसेज देगा उसको। तो मैं गया, और अपने ग्रुप में जो सीनियर्स थे वो टाइम पे, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे बगल में एक है, शायद शराबी है, तो उसको संदेशा देने की जरूरत है। तो हमारे एक ओल्ड टाइमर थे, उन्होंने बोला, तेरा नेबर है, तू दे दे मैसेज। और सडनली मैं एकदम शॉक हो गया। मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं मैसेज देने जाऊंगा। अरे, जो बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, एक तो नया शहर, नया घर, नई नई सोसाइटी, यहाँ पर किसी को मालूम नहीं है मेरे पीने के बारे में या मेरे सोसाइटी के बारे में। और वहां पर जाके मैं अपनी एनोनिमिटी ब्रेक करूं, वहां पर जाके मैं बात करूं, अब मैं शराबी था और मैं मदद कर सकता हूं, ये सब मेरी कुछ हिम्मत हो नहीं रही थी। मेरी और मेरे बीवी की हमेशा बातें होती थी कि मैसेज देना चाहिए, कभी न कभी तो देना चाहिए, ले ये लोगों ने मेरे ऊपर ही डाल दिया, ऐसे है वैसे है, ये सब बातें चल रही थी। और एक दिन वही घर से रात को लेट जोर से रोने की आवाज आई। तो वो जो लड़का था, उसका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मौत हो गया। उस दिन ना मैं, ना मेरी बीवी, हम दोनों सो नहीं पाए कि शायद अगर हमने हमारी अनामिकता का बहुत इतना बड़ा इशू नहीं किया होता, या दूसरे शराबी के साथ में बात करने का डर अगर दिल में हमारे इतना बसा नहीं होता, तो शायद एक जान बच सकती थी। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं संदेश देने का अगर मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी आता है, तो मैं कभी उससे पीछे नहीं हटूंगा। कम से कम खुद के कारण, खुद की इमेज या खुद के फियर या खुद के डर की वजह से मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब उन दिनों, मैं 1992 की बात कर रहा हूं, हमारे रिवाइवर ग्रुप में हार्डली 3-4 मेंबर्स थे।
अभी 12 स्टेप कॉल करने का यानी करने का क्या, कैसा करने का। तो मैं आया था रिहैब सेंटर से, तो मेरा उनके साथ में कांटेक्ट था। तो मैंने उनको बोला कि अगर कोई भी ठाणे एरिया में से डिस्चार्ज होने वाला है तो मेरे को बताओ, मैं उसको फॉलो अप दूंगा। अब रिहैब सेंटर को ऐसे लगते ही रहते हैं कोई ना कोई जो बाहर निकलने के बाद में सपोर्ट दे सके। तो धीरे 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 मेरे पास अ, नाम आने लगे, कॉन्टैक्ट्स आने लगे, एड्रेस आने लगे, और मैं उनको फॉलो अप करने लगा। और एक आध करके लोग सोबर होने लगे। जैसे लोगों को एक्चुअली सोबर रहते मैंने देखा, और लोगों ने मुझे जब भी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया कि आपने मुझे मदद किया, इसके लिए मैं ठीक रहा, मैं आया तो मैं कंफ्यूज था लेकिन आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ठीक लगा। तो ये फीलिंग मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं अभी फाइनली कुछ तो भी अच्छा अभी करने लगा हूँ, कुछ तो भी मीनिंगफुल करने लगा हूँ। तो अगला टप्पा मैंने सोचा दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरी हिम्मत हो नहीं रही थी कि बेवड़े को कहीं से पकड़ के लाके उसके घर पे जाके बात करने को। मेरे को आई वांटेड टू टॉक, मैं उन्हीं से बात करना चाहता था जिनकी रुकी हुई है, और खाली उनके साथ में बात करके उनको सोबर रहने में मदद करनी, इतना ही मैं काम करना चाहता था। और फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि मेरा कुछ साइकेट्रिस्ट लोगों से पहचान हुआ था, मैं उनके नॉलेज से काफी इम्प्रेस था। तो मैंने सोचा चलो साइकेट्रिस्ट लोगों से बात करते हैं। तो मैंने जो हमारे शहर के एक दो तीन जो अच्छे साइकेट्रिस्ट थे उनको जाके अपनी पहचान करवाई ए मेंबर करके, और मैंने बोला अगर आपके पास कोई पीड़ित शराबी होगा तो मुझे कांटेक्ट दीजिए, मैं ये करता हूँ। तो एक आध दूसरा ऐसा भी मिलता था जिसकी रुकी हुई है, गोलियां वगैरह खा रहा है, ऐसे मिलता था। हमारे थाना के श्रीकांत जोशी, एक डॉक्टर श्रीवास्तव करके थे, वो इन लोगों ने काफी सारे लोगों की मैसेज वगैरह देना चालू किया, लेकिन ज्यादातर वही मैसेज मिलते थे जिनका पीना रुका नहीं है और उनके घर में जाके उनको बात करने का है। पहले मुझे बहुत एम्बेरसमेंट लगती थी कि यार पराये आदमी के, वो भी बेवड़े के घर पे जाके बात करना और उसको अपने बारे में बताना। आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस। लेकिन अभी डॉक्टर ने बोला हुआ है, अपॉइंटमेंट भी लिया हुआ है, बात भी किया फोन पे, और मैं फाइनली ऐसे एक दो तीन चार लोगों के साथ में जाके मैं उनके घर में जाके उनके साथ बात करना चालू किया। और जब ही एक्चुअली मैंने 12 स्टेप कॉल किया और वो बंदा सोबर हो गया, ना उसको रिहैब जाने की जरूरत पड़ी, वो डायरेक्टली अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके बगैर शराब पी के जब ये रुकने लगा, तो बॉस मुझे इतना बड़ा ऐसा किक बैठा, मुझे ऐसा इतना हाई लगा कि यार मैं ये कर सकता हूं, मैं लोगों की जिंदगी बदल सकता हूं। मैं क्योंकि मेरे को ये विश्वास नहीं था, मेरे को ऐसे लगता था कि रिहैब सेंटर में जाए बगैर शराब बंद ही नहीं होती है, कि किसी ना किसी तरीके से फॉर्मली डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है, या कंपलसरी कुछ समय तुमको रखा नहीं जाता है, तब तक तुम रुक नहीं पाते। यही मेरे विश्वास है, क्योंकि मैंने वो किया था। लेकिन जब भी मेरे ही बात करने के बाद में लोगों को मैंने रुके हुए देखा, इट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग। वो जो फीलिंग था कि और करो, मैं और लोगों से बात करूं, कहां से लाऊं, कहां से डिटेल्स कलेक्ट करूं, कहां से मेरे को कांटेक्ट मिलेगा, कहां से मैसेज मिलेगा। ये जो फीलिंग है, वो जो वो पीड़ित शराबी के साथ में बात करने की एक प्यास जैसे लगती है कि कहां मिलेगा, कि इसका भाई है, उसका परेशान, उसका पहचान वाला, इसके कंपनी में काम करता है। अभी जो मेरे मन में जो संकोच था वो पूरी तरह से हट गया था। मेरे मेरे को कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा उसके बारे में फीलिंग, क्योंकि एक दो ऐसे किस्से भी हुए मेरे साथ। मेरे को किसी ने घर से बाहर वगैरह नहीं निकाला, फॉर्चुनेटली मेरा अनुभव वैसा नहीं है। कुछ लोगों को वैसे भी अनुभव हुआ है, क्योंकि मैं यूजुअली कुछ ना कुछ रेफरेंस लेके या फोन करके या अपॉइंटमेंट लेके इस प्रकार से जाता था। तो मेरे को किसी ने आउटराइट घर से बाहर वगैरह नहीं निकाला। लेकिन
कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छा संदेशा दिया और मुझे लगा ये 100% सोबर होने वाला है और वो बंदा नहीं सोबर हुआ। मुझे एक किस्सा याद है, एक हमारा मेंबर बार बार स्लिप होने वाला मेंबर था, उसको हम लोगों ने कलवा हॉस्पिटल, वो टाइम पे अफोर्डेबल एक ही था, कलवा हॉस्पिटल वार्ड नंबर 14 में हम लोग जाके वो जमा कर देते थे उसको और उधर डिटॉक्स करवा देते थे। तो एक ऐसे ही बेवड़े को, अपना बार बार स्लिप करने वाले बेवड़े को हम लोगों ने कड़वा हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और मैं जाता था उसके साथ में, बेड पे बैठ के उसके साथ में बात करता। अभी वो अल्कोहलिक वार्ड ही था, यानी वहां पर जो भी बेवड़े या ड्रग चर्सी वही लोग वहां पर एडमिट हुआ करते थे। तो मैं जब भी देखा कि अगल बगल वाले फैमिली मेंबर्स और बेड वाले भी जरा थोड़ा सा कान देख के सुन रहे, तो मैं थोड़ी सी आवाज बढ़ा दिया और मैं थोड़ी सी बड़ी आवाज में वो जो बेवड़ा जिसको हमने एडमिट कर दिया था उसको मैंने ये कार्यक्रम ये वो इसके बारे में बात करना चालू कर दिया। वो जो जिसको मैंने एडमिट किया था, कई बार फॉलो अप किया था, रिहैब में डाला था, वो तो सोबर हुआ नहीं, लेकिन उसके बाजू वाले बेड में बैठा हुआ एक फैमिली बड़ा कान दे के सुन रहा था। और अगले दिन जब मीटिंग को मैं गया, और अगले दिन यानी नेक्स्ट वीक में वो आदमी वो जब डिस्चार्ज हो गया, वो उसकी पूरी फैमिली के साथ में मीटिंग में आया, 2-3 मीटिंग कर दिया और वो सोबर हो गया। यानी हम सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम जिसको चाहते कि मैं पूरा एफर्ट लगाया, पूरा पैसा खर्चा किया है, पूरा उसके ऊपर टाइम दिया है, ये आदमी को सोबर होना चाहिए, वो सोबर नहीं होता है। और कोई भलता ही जिसके ऊपर हमने एफर्ट भी नहीं लिया है, कहीं उड़ते उड़ते उसने कहीं सुना होगा, ऐसा सोबर हो जाता है। ये सभी जब मैंने देखा तो मुझे धीरे धीरे एहसास होने वाला कि मेरा काम सिर्फ संदेश वाहन है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक सुपीक जमीन है, तो उसके ऊपर बीज डालने का काम सिर्फ मेरा है। कौन सा पौधा बनेगा और कौन सा बंजर जाएगा, ये अपने को मालूम नहीं रहता है, ये ऊपर वाले की कृपा है। उसने खाली अपने को उसका व्हीकल करके इस्तेमाल करना है। और वो जो भाव लेके मैं जाने लगा कि किसी की 12 स्टेप कॉल जाने के पहले एक सेरेनिटी प्रेयर लेने का और एक प्रार्थना कर देने की कि हे भगवान, मेरे में से तेरा जो भी है वो भला करवा, यूज मी एज योर व्हीकल। तेरा जो भी काम है इसको ठीक करवाना है, या तेरी जो भी इसके लिए इच्छा है, वो मेरे से उस तक तेरी ग्रेस पहुंचाने का तू मुझे स्ट्रेंथ दे दे, तू मेरे को करेज दे दे। इस प्रकार की प्रार्थना करके मैं जाने लगा। तो जो भी थोड़ा बहुत झिझक होता था, थोड़ा बहुत डर रहता था कि ये कैसे रिसेप्शन मिलेगा, वो अपने को अंदर लेगा कि नहीं, वो रफली बात करेगा कि क्या एरोगेंटली बात करेगा कि सुन लेगा, ये सभी जो फियर्स है ना, एक दफा थोड़ा सा प्रेयर करके अपने कमजोर मन को थोड़ा सा बल देके जब भी अनोखे घर की बेल आप दबाते हो और जब भी आप बात करना चालू करते हो, तो हमें रियलाइज होता है, मतलब मुझे बार बार रियलाइज हुआ है कि वहां पर मैं जो बात करता हूं, मैं कोई कैसेट नहीं बजाता हूं, कोई प्री रिकॉर्डेड ऐसा मेरा कि ये डायलॉग डाल दिया। ऑटोमेटिकली इंस्टिंक्टिवली वो आदमी की मनस्थिति क्या है, उसका परिस्थिति क्या है, वो हमें समझ में आने लगता है। और हमारा जो स्पीच है, हमारा जो टोन है, हमारा जो लैंग्वेज है, हमारा उसके साथ में जो आंख आई कांटेक्ट है, ये ऑटोमेटिकली उस प्रकार का होने लगता है कि तुम्हारी जो एम्पैथी है, तुम्हारा जो प्यार है, तुम्हारा जो कंसर्न है, वो उस तक पहुंचने लगता है। और वो व्यक्ति तैयार होने लगता है अपने आंखों के सामने, उसका डिनाइयल ब्रेक होते हुए, डिफाइंस ब्रेक होते हुए, और वो सुनने लगते हुए, और वो पार्टिसिपेट करने लगता है, और उसको विलिंगनेस आने लगता है। और वो बोलती उसकी जब भी बंद हो जाती है, और वो ख्यालों में जब भी उलझ जाता है कि आई थिंक आई नीड टू गो विद दीज गाइज, इन लोग के साथ में शायद में जाना लग पड़ेगा, ये जब भी वो बदलाव उसके चेहरे में सामने दिखते रहते हैं अपने आप को। हम बोलते रहते हैं, लेकिन बदलाव सामने अपने आप दिखते रहता है। और वो जो अनुभव है ना, बड़ा स्पेशल गिफ्ट है। वो जो अनुभव है, हमारे सामने किसी के अंदर का भय, किसी के अंदर का क्रोध, किसी के अंदर का संशय मेल्ट होते जा रहा है, और उसके मन में वहां पर थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी इच्छा, थोड़ा सा होप, थोड़ा सा स्माइल,
थोड़ा सा बोलने की इच्छा, ये उसके मन में जब भी पैदा होते अपने को दिखने लगती है, तो बड़ा ही स्पेशल एक्सपीरियंस रहता है। सो BW जब भी यहाँ पर हमको बात करता है, तो बड़े डिटेल में उसने ये अनुभव कि भाई तुम मैसेज देने का काम करो, उसका सक्सेस होगा या नहीं, कौन सा सक्सेस होगा। क्योंकि खुद बिल का अनुभव ये है कि 6 महीने लगातार अलग अलग लोगों से बात करने के बाद में भी एक भी नहीं सोबर हुआ था। लेकिन जब भी खुद को बचाने के हेतु उसने एक डॉक्टर को संदेशा दिया था, संदेशा उसको देने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के हेतु उसने जब भी बात की थी, तो बात बन गई थी। सो वहां से वो जो ह्यूमिलिटी कि जब भी मैसेज देने को जाते हैं, तो हम प्रोफेशनल्स नहीं है, हम ये एक्सपर्ट्स इन द फील्ड नहीं है, हम जानकार नहीं है, बल्कि हम भी फेलो सफरर्स है, खाली उसके 2 कदम आगे चल रहे। ये भाव जब भी चलता है, तो वो व्यक्ति आकर्षित होता है और हमारी तरफ बढ़ने के लिए तैयार होता है। बस यही कुछ अनुभव मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ओवर टू यू चंदू। भूषण, एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। श्योर। दोस्तों, मेरा 2011 में मैं रिहैब में भर्ती हुआ था, और 4 महीने हो चुके थे और मैं छूटने वाला था। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये 12 स्टेप उन्होंने बताया, ये है, मीटिंग जाना है, बस इतना ही मालूम है। लेकिन किताब पढ़ा, लेकिन ये ग्रुप स्टेप्स और उसमें कोई मतलब बाहर का नॉलेज ही नहीं था। चौथे महीने में 1 हफ्ते पहले छूटने के, हैदराबाद में था, 2 बंदे आए रिहैब उस दिन। एक थे भूषण और दूसरे एक दादर के सीनियर मेंबर। और वो लोग आके अपना शेयरिंग करने लगे। और मैं थाने में रहता था, एक्चुअली मुंबई में, भर्ती हैदराबाद में किया गया था मेरा। तो मैं इनसे मिला और बोले कि ठीक है, आ जा। तो जब मैं 1 हफ्ते बाद छूटा, तब तक दोस्तों, लाइक 2 साल मैं सिर्फ मुलुंड एरिया में रहता था। तो मुलुंड में ही पीना और वहीं के बार और वगैरह, थाने में कभी एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता था थाने, तो जाता ही नहीं था मैं स्टेशन के आगे। फिर जब भूषण का जब ये मैसेज मिला, तो मैं उनका नंबर लेके गया दोस्त। और पहले ही मीटिंग के दिन लकी जी भी मिले और एक नया रास्ता मिल गया था दोस्तों। तब तक मेरे अंदर बहुत सारे इनहिबिशंस थे, डर था, वगैरह वगैरह। एम आई ऑडिबल? यस, ऑफ कोर्स। और एक नया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो बोलते हैं ना, वो मिल गया दोस्तों। भले ही मैं 6 महीने बाद रिलैप्स हुआ, बात अलग है, मुझे बैंगलोर में वापस नौकरी मिल गई, मैं बैंगलोर गया और रिलैप्स गया। लेकिन तब एक नया रास्ता दिख गया था, ये 12 स्टेपिंग टू। अदरवाइज वो रिहैब से छूटता में मेरे पास कोई दिशा नहीं थी दोस्तों, मेरे पास कोई दिशा नहीं थी तब। ये 12 स्टेप का ही बात है। तो बस यही एक छोटा सा किस्सा बोलना था मेरे को, शेयरिंग। अभी कोइंसिडेंटली हम लोग हैदराबाद गए थे, वो किसी कन्वेंशन अटेंड करने को गए थे, और वो कन्वेंशन में सुबह का टाइम में मेरा और वो जो हमारे दादर के मित्र थे, हम दोनों का शेयरिंग पूरा हो गया और हमारे सामने पूरा दिन था। तो ये जो रिहैब सेंटर के जो ओनर थे, वो भी एक ए मेंबर ही थे, और वो कन्वेंशन में हमको मिले थे और उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा उनका रिहैब है। तो मैंने जब भी कोई रिहैब में जाने का मौका मिलता है और वो वहाँ के पेशेंट्स के साथ में बात करने का मौका मिलता है, तो मैं जरूर उनके साथ में बात करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ की मनस्थिति क्या होती है। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि मैंने काफी सुना है आपके रिहैब के बारे में, तो क्या मैं पेशेंट्स के साथ में बात कर सकता हूँ? और बोला हाँ, आ जाओ। बोला कभी आए? तो बोलते आज ही आ जाओ, आई एम फ्री। और ऐसा वो योग बन गया था और वहां पर हमारी चंदू के साथ में मुलाकात हो गई। अब मैं कोई चंदू को सुधारने को तो गया नहीं था, मैं तो इतना ही बताने गया था क्योंकि मैं जानता था कि रिहैब में रहने वाले लोगों की मनस्थिति क्या रहती है। फंसे हुए रहते हैं, दीवार के अंदर रहते हैं,
डरे हुए रहते हैं, कब बाहर निकलेगा, वो होपलेस मनस्थिति रहती है। और इसमें से सब में से मैं गुजरा हुआ था और मैं जानता था कि यहाँ पर थोड़ा सा होप देने से बहुत सारा फर्क पड़ सकता है। क्योंकि मुझे इस प्रकार का होप मिला था जब मैं सेंटर में था कि बाहर जाके भी कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम है। तो मैं ये जो संदेश वहन का जो कार्य है कि जहां जहां पीड़ित शराबी हो, वहां वहां अगर किसी भी प्रकार से आपने को अपना कहानी बताने का मौका मिला तो वो जरूर करना चाहिए। आगे हम लोग बहुत कुछ इसके बारे में बात करने वाले। मेरे ख्याल से समय भी खत्म होने को आया, तो मैं यही अपने आप को रोकता हूँ। हाँ इनफैक्ट तो भूषण, चंदू, यस हम लक्की जी। सभी की रिकवरी किसी न किसी की दी हुई सेवा के कारण ही होती है। हम सभी की रिकवरी, देखो ट्रू। ना, मुझे मैसेज दिया डॉक्टर ने, और उस डॉक्टर के पास जाके किसी ए मेंबर ने ए के बारे में बताया होगा, उसको मीटिंग्स में लाया होगा, उसके साथ में संबंध स्थापित किए होंगे। तो मैं जब भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो वो हॉस्पिटल ने जो उनके साथ में संपर्क में ए मेंबर था उसको बताया होगा, एंड ही केम टू मी ऑन द थर्ड फोर्थ डे। तो हम सबकी रिकवरी किसी ना किसी की सेवाओं पे ही निर्भर है, ये बात तो तय है। और इसमें जो 12 स्टेप्स में जो बिल ने हमें अलग अलग प्रकार से समझाया है, उसमें मैं आज मानता हूं जो भूषण ने शेयर किया अभी, आज रिहैबिलिटेशन सेंटर एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे लिए, जहां पे ऐसे इच्छुक शराबी जिनको शराब से दूर रहने की इच्छा अवेलेबल है, जो शायद शराब से दूर भी हैं, अभी जितना टाइम रिहैब में उतना टाइम तो दूर ही होते हैं, और बाहर निकलने के बाद जब ये सवाल उठता है कि क्या करें, तो ऐसे में अगर उनको अल्कोहलिक्स अनोनिमस का संदेश मिलता है, ये जिंदगी का तरीका समझ में आता है, और हम में से लोग संपर्क में रहते हैं, तो हम एक बहुत बड़ा कार्य बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारी सारी फोकस ब्रिजिंग द गैप की तरफ होती है, और इसके ऊपर ढेर सारा लिटरेचर और अनुभव हमारे पास अवेलेबल है। मैं समझता हूँ इस ग्रुप में भी बहुत सारे मेंबर ऐसे जुड़े हुए हैं जो या तो रिहाब से आए हैं, या जिनकी इच्छा है कि आसपास के रिहैब में जाकर के मैं हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन, जहाँ पे ए का संदेश नहीं है, वहां पे जाके मिलूं, संदेश दे सकूं, तो एक बड़ा ही सुंदर कार्य होगा। और इसका जो रिटर्न आपको मिलेगा वो अभी ये जैसे ही हम 12 स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, और बड़ा ही अविस्मरणीय होता है। जिंदगी की हाईलाइट, दिन की हाईलाइट बन जाता है, वो टॉकिंग पॉइंट बन जाता है। थैंक यू चंदो। लकी, ऑन दिस पॉइंट एक बात का मैं जिक्र करना रह गया। बिल डब्ल्यू यही पैराग्राफ में ये भी छेड़ देता है कि जो लोग अपने आप को फेस टू फेस 12 स्टेप कॉल करने के लिए अपनी तैयारी नहीं बना पाते हैं, दे कैन ऑलवेज हेल्प आउट इन मेकिंग द 12 स्टेप कॉल्स पॉसिबल। यानी कि 12वां कदम का कार्य संभव हो सके, इसके लिए जो सेवाएं हैं वो सेवाओं में भी आप हाथ भर आप मदद कर सकते हो, और वो भी आपका 12 स्टेप ही गिना जाता है, वो भी आपकी सेवा ही गिनी जाती है। फिर आप ग्रुप की चाय कॉफी बांटने से लेकर कुर्सियां लगाने का, या ग्रुप का सेक्रेटरी करके आप मीटिंग चलाने का, या सिर्फ मीटिंग रूम में जाकर आप बैठते भी हो और आशा प्रदान करते हो, न्यू कमर को आशा प्रदान करते हो, जब भी मौका मिले तभी शेयर करते हो, या किसी ना किसी प्रकार से ए का संदेश पीड़ितों तक पहुंच सके, ऐसी जो भी सेवाओं की रचना है, इनमें से किसी सेवाओं में किसी प्रकार का हाथ आप लगाते हो, तो ये ब्रॉड अम्ब्रेला, ये जो है इसका जिक्र यहाँ पर बिल डब्ल्यू ने किया है। आगे इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं, बट फिलहाल बिल डब्ल्यू ने 12वें कदम का जिक्र करते हुए ये सभी के बारे में बात छेड़ी हुई है। ओवर टू यू चंदू।
ओके दोस्तों, मीटिंग का समय हो गया है आज, तो हम अगले हफ्ते शुक्रवार को 9 से 10:30 बजे कंटिन्यू करेंगे अपनी 12th स्टेप पे। सो मैं सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक अनम्यूट करें और सैनिटी प्रेयर लेते हैं हम इंग्लिश में वी वर्जन पे। गॉड God grant us the grant us serenity the Grant us serenity the to serenity accept the things we cannot to change, accept the things we cannot change, courage to change things courage we to can change change, things we can change, and wisdom to know the difference. and wisdom to Keep know coming the back and work His Keep will. coming back. Thank you all. आते रहो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।